area of the triangle. By this formula you can find the area of the triangle if x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be the vertices of the triangle. Then by using the determinants you can find the area of the triangle using this formula. This is the first coordinate x1 y1 x2 y2 and x3 y3. These are the vertices of the triangle and you have to write the 1 1 here. So by this formula you can find the area of the triangle, and the area is positive. Take only the absolute value, means area हमेशा पॉजिटिव होती है. It is the 3 points are collinear. If the 3 points are the collinear, the area of the triangle is 0. Means if you have to show that the 3 points are the collinear, then you have to show that the area of the triangle is equal to 0. Or if the x1 y1 and x2 y2 be the point, from you have to show that given points, find the equation of line with the given point. So then again you have to apply this formula, same with the same formula you get the equation of line. Next point is minor of an element of determinants. Minor, suppose a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a3 be the determinants, and if you want to minor of the first element of the second row, so then you have to delete the corresponding row and corresponding column with the corresponding a21. So then you get, if you are deleting this row and this column, then you get the a12 a13 a32 and a33. So this is the minor of m21. M means minor. M21, this is the a12 a13 a32 33. This is the minor. And if you want to find the minor of the a12, so then again you have to delete the this row and this column. So then you get the a21 a23 a21 a23 a31 and a33. So this is the minor of the second element. Next point is cofactor. Cofactor of an element of determinants. तो माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है. कोफैक्टर में हम साइन के साथ लेके चलते हैं और माइनर वही एलिमेंट होता है. जिस एलिमेंट का हम माइनर लेते हैं उस एलिमेंट का कोफैक्टर अगर फाइंड करते हैं तो देन हम ये देखते हैं कि -1 पे पावर जितना यहाँ पे इंडेक्स दिया रहता है उसको हम ऐड कर लेते हैं. 2 + 1 3 है, तो इट मीन्स कि ये साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा. और अगर हम इस तरह से कोफैक्टर ऑफ A22 फाइंड करते हैं, कोफैक्टर ऑफ A22, तो इट मीन्स A22 दैट विल बी दी -1 पे पावर 2 + 2 and the minor of the A22 you have to delete this row and this column. It means you get the A11 A13 A31 and A333. So this is the, and if you are simplifying then you get the positive sign A11 A13 A31 and A33. तो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि माइनर में हम साइन का यूज नहीं करते हैं और हम कोफैक्टर में साइन का यूज करते हैं. और साइन नेगेटिव या पॉजिटिव डिपेंड करता है कि हम कौन सा एलिमेंट का फाइंड कर रहे हैं. A22 है, मतलब कि 2 + 2 2 + माइनस पे पावर 4 which is the even number. So therefore the sign of this determinant is positive. Next is adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix, the adjoint of a square matrix is the transpose of matrix cofactor. मीन्स कि अगर हमें जिस डिटरमिनेंट्स का जिस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट फाइंड करना है, सबसे पहले उसके लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं. तो ट्रांसपोज मतलब कि हमें क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे A11 A12 13 है, तो इस रो को अगर हम इस कॉलम में चेंज करेंगे तो A11 A12 A13 जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगा, थर्ड रो
थर्ड कॉलम में चेंज होगा। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, मीन्स यू कैन से कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a singular if determinants of A is equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आती है तो हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर ये डिटरमिनेंट्स A इज नॉट इक्वल टू 0 तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एज यू नो कि आप जो है मैट्रिक्स में इनवर्स फाइंड करते थे बाय यूजिंग द एलिमेंट्री मेथड, तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो फर्स्ट क्या करना है हमको कि फाइंड आउट माइनर और को फैक्टर ऑफ ए एवरी एलिमेंट, मतलब जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम माइनर और को फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर को एडजॉइंट फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय दिस फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बाय दिस फार्मूला वी विल फाइंड द inverse of the matrix। तो this is the inverse of the matrix using the adjoint of the matrix। और हम मैट्रिक्स में जो फाइंड करते थे इनवर्स, वहाँ पे बाई यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते थे। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम एंड रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट्स जो डिराइव्ड होते हैं तो उस तरह से जो है कुछ जो यूज होगा प्रॉपर्टीज में कहीं कहीं, तो उस तरह से ऐसे मतलब कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दैट इज ए आई। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स है अगर उसका एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ये जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू आई के इक्वल होगा। एंड just do not wait, one thing, this is the determinants of ai, I think that will be the determinants of ai, determinants of ai, not the ai, arb. And the second property, if a and b are the non-singular matrix, then ab and b are also non-singular matrix। कि मतलब a और b का जो प्रोडक्ट होगा, b और a का जो प्रोडक्ट होगा वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ डेल्टा डिटरमिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए बी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और a स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब इन्वर्स तभी निकलेगा जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए बी पावर -1 इज इक्वल टू आर ए बी, यू कैन से कि इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और किसी इनवर्स कम जो ट्रांसपोज का इनवर्स जो होगा वो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज, आर ए इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। एक्स वाई जेड अगर 3 मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट का इनवर्स लेते हैं, तो उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज विच विल बी द यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इज linear system of the equation, consistent system। Consistent, the system of equation is said to be consistent if it has one and more than one solution। consistent मतलब कि अगर जो इक्वेशन है उसके अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो उस वन, अगर एक सॉल्यूशन है या इससे ज़्यादा सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और दिस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर मतलब कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कि एक 3 इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1,
Similarly, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b2y plus c3z is equal to d3। तो ये थ्री इक्वेशन है। इस थ्री इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द adjoint method, by using the inverse method, by using the determinants method, etc। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो कांस्टेंट का बनता है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को लेकर के एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इस तरह से इसमें जो वेरिएबल यूज होगा उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और जो इक्वल दे रखा है उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसको द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, लिख लेंगे। और आर ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब इस तरह से भी कर कि दिस इज द ए और एक्स, तो एक्स इक्वल टू बी लिखा हुआ है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एट जॉइंट ऑफ ए। इस फार्मूले से हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे और बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो जो मैट्रिक्स हमारा एक्स इज इक्वल टू इस ए इनवर्स बी के इक्वल होगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज द ऑल अबाउट द basic concept of the chapter 4, which will be used to find the solution of the exercise। Okay।